Hello students, today we are going to discuss electrolytic cell, electrolysis and Faraday's laws of electrolysis. अब ये टॉपिक जो है आपका दिस इज गोइंग टू रिमूव सो मेनी डाउट्स अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस. इसमें बहुत सारे डाउट्स आपके रिमूव होंगे इलेक्ट्रोलिसिस के रिगार्डिंग. इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप पढ़ते आने इसको राइट फ्रॉम क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था. इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ कॉपर इन 11th ऑल्सो यू हैव सीन. बट देर आर सर्टेन क्वेश्चंस विच अराइज इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स बट दे आर नॉट आंसर्ड. अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल फर्स्ट चीज़ है क्या? इलेक्ट्रोलिटिक सेल बेसिकली इट इज़ अ वेसल made up of non-conducting material. Non-conducting material means it may be either glass, it may be plastic, which does not conduct electricity. And this vessel is fitted with two metal rods. These two metal rods are called electrodes. They are called electrodes. And the electrode attached with positive terminal is called anode. And the electrode attached with negative terminal of electricity is called cathode. And this cell, electrolytic cell, is filled with solution of electrolyte or melt of electrolyte. This word is used in NCERT, melt. Melt means basically molten electrolyte, means this has been melted. Means suppose say molten NaCl, आपने suppose के अंदर NaCl लेते हैं तो NaCl has been melted and after melting when it becomes liquid, that has been filled. On passing electricity, Na positive goes to negative plate, Cl negative goes to positive plate, and oxidation reduction reactions take place. Na positive will go here, it will accept electron, will be reduced. Cl negative will go to anode, it will be oxidized. Anode पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है. दैट यू हैव सीन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑल्सो. नाउ दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इसमें ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी this electrolyte is breaking. Electro means electricity, lysis means breaking. So there is breaking of this salt into ions on passing electricity. That is called electrolytic cell. अब इस electrolytic cell के regarding आपने class 10th में पढ़ा electrolytic reduction. That has been explained in NCERT also. In class 10th you have seen कि if you want to refine copper, अगर आपको copper refine करना है, you have impure copper, then we take a large electrolytic cell. And that happens in industries also. And a very thick rod of impure copper. आपके पास impure copper है जो आपने मेटलर्जी करके मेटलर्जी से निकाला है. It is impure, it's not pure. आप इसको प्यूरीफाई करना चाह रहे हैं. Then it is made up as anode. इसको आप एनोड बनाते हैं. And a very thin strip of copper is made cathode. That even can be a single wire. That is cathode. This is anode is impure copper which you want to refine, and cathode is pure copper. एक पतला सा स्ट्रिप आपने लिया है. Now this cell is filled with electrolyte, and electrolyte here is copper sulfate solution. This is copper sulfate solution. Now when you pass electricity, on passing electricity, copper sulfate will ionize to give Cu2 positive and SO4 2 negative. Copper will be 2 positive and SO4 will be 2 negative. Now this Cu2 positive ion from electrolyte will go to negative plate. Negative plate पर this Cu2 positive will go and will accept 2 electron and will become Cu solid. This Cu2 positive will go to copper electrode which is your cathode, और यहाँ पर जा करके Cu2 positive will connect to copper और डिपॉजिट हो जाएगा इसी शीट पर. डिपॉजिट होने से इसकी शीट की थिकनेस बढ़ेगी. Now Cu2 positive moves to cathode, then there will be deficiency of Cu2 positive in this electrolyte. अब इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर Cu2 पॉजिटिव का अमाउंट कम होने लगेगा. देयर विल बी डेफिशिएंसी, इट मूव्स टू कैथोड. देन जस्ट टू फिल अप दिस गैप, यहाँ से कॉपर फ्रॉम इम्प्योर रॉड दैट कम्स इनटू द सॉल्यूशन. तो एनोड पर क्या होता है? दिस इज एट कैथोड, एंड एट एनोड Cu solid in this impure rod
becomes Cu2 positive and donates 2 electrons. Now these 2 electrons will travel through the circuit, they will reach here. And Cu changes to Cu2 positive, means Cu will change to Cu2 positive. It means what is happening? Copper from impure rod goes to electrolyte and Cu2 positive from electrolyte goes to copper electrode. It means यहाँ पर copper deposit होता जाएगा, it will become thicker and thicker and it will be dissolved. और dissolve होते होते इसमें क्या होगा? It will be dissolved completely. After some time it will be completely dissolved. And impurities, they will fall down at the bottom. इसको हम कह देते हैं एनोड मड. This particular term is used in class 10th also. Impurities will fall here. Pure copper यहाँ से electrolyte and from electrolyte it will go to cathode. Means एनोड से complete copper transfer हो जाएगा किस पर? कैथोड पर. कॉपर रॉड आपकी ये थिक होती जाएगी, ये डिजॉल्व होता जाएगा, impurities will fall down, impurities नीचे आ जाएगी. तो अल्टीमेटली टोटल कॉपर विल बी रिफाइंड. ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है एंड दिस इज द एप्लीकेशन. सेम वे यू कैन यूज इन एल्यूमिनियम ऑल्सो. एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से ही बनाया जाता है. नाउ इफ यू टेक NaCl, सपोज आप इसमें NaCl लेते हैं. इन दिस केस ऑल्सो इट इज गिवन इन क्लास 10th. NaCl will ionize to give Na positive plus Cl negative. Now Cl negative will go to this negative charge ion. Anion means it will go to anode. Cl negative will donate 1 electron, it will become Cl. That will happen at anode. Cl negative will come to anode, it will donate 1 electron, will become Cl. अब Cl सिंगल एटम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, इट मीन्स इट विल चेंज टू Cl2. 2 Cl atoms will combine to form Cl2, you can make it 2. So electron, number of electrons will be 2. Then Na positive will go to, Na positive is cation, it will go to cathode. Cathode पर जाकर it will accept 1 electron, it will change to Na. So if you have shown 2 electrons, you can make it 2 also. 2 Na positive plus 2 electron will become 2 Na. So that doesn't make any difference. Basically chloride ion will change to chlorine and Na positive will change to Na. It means Cl negative यहाँ से आकर के Cl2 की फॉर्म में it will be liberated and Na will be collected on this electrode. यहाँ पर आप एक कंटेनर रखते हैं तो सोडियम मेटल विल बी कलेक्टेड. सोडियम मेटल विल बी कलेक्टेड हियर, दैट इज एट द कैथोड. कैथोड पर आपको सोडियम मेटल मिल जाएगा. नाउ दिस इज द केस ऑफ NaCl. अब NaCl में ये तो आप पढ़ रहे हैं कि sodium chloride on electrolysis will give sodium and chlorine, and this is basically industrial method of preparation of sodium as well as chlorine. इसमें आपको सोडियम भी मिलता है, क्लोरीन भी मिलती है. ये सोडियम का इंडस्ट्रियल मेथड है. डाउन सेल्स प्रोसेस नाम से इसको पढ़ाया जाता है आपको. अब तो नहीं है, इट्स नॉट इन योर सिलेबस. दैट इज कॉल्ड डाउन सेल प्रोसेस एंड इट इज़ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम. इंडस्ट्रियल स्केल पर, लार्ज स्केल पर आपका सोडियम इसी मेथड से बनाया जाता है. अब इसी के अंदर एक और टॉपिक आपका डिस्कशन किया गया NCERT में कि इफ़ यू टेक NaCl प्लस वाटर, मीन्स नॉट ओनली NaCl, यू हैव टेकन aqueous NaCl. Aqueous NaCl means NaCl has been dissolved in water. अब आपने इसमें थोड़ा सा चेंज किया. द सेम वन आई हैव चेंज्ड. अब हमने इसके अंदर चेंज कर दिया है. आई एम नॉट ड्राइंग सेपरेट डायग्राम. सपोज यू हैव टेकन NaCl एंड यू हैव टेकन वाटर. You have taken NaCl and you have taken water, means HOH. So what will happen? NaCl will be ionized to give Na positive and Cl negative. Water will be ionized to give H positive and OH negative. Now there are 2 cations and 2 anions. अब इसके अंदर केस चेंज हो गया. Initially there was only NaCl and NaCl was giving Na positive and Cl negative. Na positive and Cl negative. But now water will also ionize to give H positive and OH negative. Now there will be 2 cation, Na positive, H positive, and 2 anions, Cl negative and OH negative. अब इसके अंदर 2 anions हैं and 2 cations हैं. Cations they always go to cathode, anions always go to anode. यहाँ पर Na positive है आपका, this is cation. This reaction takes place at
cathode. This one here is given. When NaCl is ionized, it will be Na positive and Cl negative. Cl negative goes to anode, anion है, it goes to anode. Na positive goes to कैथोड. अब इसमें आप देखें कि कैथोड पर रिडक्शन है, एनोड पर ऑक्सीडेशन है. ये इसमें एक चीज़ और पहले भी हम बता चुके हैं आपको, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसमें एक वर्ड यूज़ किया था हमने, लोन. लेफ्ट हाफ वाज ऑक्सीडेशन हाफ एंड देयर इज एनोड एंड हैज़ नेगेटिव चार्ज. एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, वेदर इट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. आप ये ध्यान रखें दिस पार्ट कि whether it is electrolytic cell or it is electrochemical cell, on anode there will be always oxidation. This term basically we have explained with electrochemical cell. Complete एक वीडियो आपको देखना पड़ेगा. But you remember one thing कि on anode there is always oxidation. अब इसमें anode पर Cl negative is converted to Cl2. It donates electron. जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है it is called oxidation. It accepts electron. Na positive accepts electron. This reaction is reduction. तो बेसिकली एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन. नाउ Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव बोथ ऑफ देम विल गो टू कैथोड. अब दोनों ही कैथोड पर जा सकते हैं, Na पॉजिटिव भी एंड H पॉजिटिव भी. ना Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव बोथ ऑफ देम कैन गो टू, कहाँ जाएंगे, कैथोड. और कैथोड पर जाकर के दोनों का ही क्या हो सकता है, रिडक्शन. ऑन द अदर हैंड Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव कैन गो टू, दोनों एनायन है, दे विल गो टू एनोड एंड मे बी ऑक्सीडाइज्ड. दोनों ही ऑक्सीडाइज हो सकते हैं. अब बोथ ऑफ देम कैन बी रिड्यूस्ड, बोथ ऑफ देम कैन बी ऑक्सीडाइज्ड. दोनों पॉजिटिव में से कौन ऑक्सीडाइज और कौन रिड्यूस होगा, दोनों नेगेटिव में से कौन ऑक्सीडाइज होगा. अब ये डिसाइड करना आपका, दैट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन. प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये डिसाइड होगा आपका इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से. नाउ हियर एक्चुअली व्हाट हैपेंस, बेसिकली व्हाट हैपेंस कि आउट ऑफ दीज 4 आयंस Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, एक्चुअली इसमें से H पॉजिटिव गोज टू नेगेटिव प्लेट, हियर Cl नेगेटिव गोज टू पॉजिटिव प्लेट. तो Cl नेगेटिव से तो बनता है Cl2 और H पॉजिटिव से यहाँ पर बनता है H2 एंड व्हाट रिमेन्स Na एंड OH. तो एक्चुअली इस रिएक्शन में आपको मिलता है क्या है, NaOH. तो रिएक्शन अगर आप इसको लिखें कि 2NaCl प्लस 2H2O गिव्स H2 प्लस Cl2 प्लस 2NaOH. एक्चुअली ये रिएक्शन होती है एंड दिस थिंग इज ऑल्सो गिवन इन क्लास 10th. केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट, एक टॉपिक आपको क्लास 10th NCERT में डिस्कशन है, केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट. और उसमें आपको दिया गया है कि अगर आप NaCl विद वाटर इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, इट गिव्स हाइड्रोजन, इट गिव्स क्लोरीन, इट गिव्स NaOH. तो यहाँ पर H पॉजिटिव गोज टू कैथोड, इट इज़ रिड्यूस्ड. Cl negative goes to anode, it is oxidized. What remains Na positive and OH negative. तो Na positive OH negative मिलकर के बन जाता है इसमें NaOH. और NaOH यहाँ मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. एंड दिस रिएक्शन इज बेसिकली द मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH ऑन लार्ज स्केल. इसमें हाइड्रोजन मिलता है आपको, इट इज़ अ केमिकल, कॉस्टली है, आपका बहुत जगह यूज़ आता है. क्लोरीन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ HCl एंड सो मेनी अदर कंपाउंड. आजकल आपका कोरोना पेंडेमिक में सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ होता है एज सैनिटाइज़र. सैनिटाइजेशन ऑफ बिल्डिंग, सैनिटाइजेशन ऑफ फर्नीचर्स, उसके लिए आप टीवी ऐड भी देखें, लिखा होता सोडियम हाइपोक्लोराइड और यूँ से ब्लीचिंग पाउडर, दे ऑल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन. वो क्लोरीन से बनते हैं. हाइड्रोजन इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ योर वेजिटेबल घी एंड सो मेनी अदर केमिकल्स. रिडक्शन में आप हाइड्रोजन यूज़ करते हैं. सो दिस रिएक्शन बेसिकली गिव्स सो मेनी केमिकल्स. इसमें आपको हाइड्रोजन मिलता है, क्लोरीन मिलता है, NH मिलता है. NH ऑल्सो इज़ यूज इन सो मेनी प्रिपरेशंस. इससे भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनते हैं आपके. अब NH जो बनता है, ये रिएक्शन अगर सेल को आप कहें, इस सेल के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड आता है, कास्टनर केल्नर सेल. दिस सेल नाउ इट इज़ नॉट टॉट, अब तो ये नहीं पढ़ाया जाता है NCERT में, बट इट वाज टॉट अर्लियर, पहले पढ़ाया जाता था. इट इज़ बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ NaOH.
यही सेल है, आपका यहाँ क्लोरीन मिलेगा, यहाँ हाइड्रोजन मिलेगा और इसके अंदर आपको NaOH मिलेगा। अब ये क्यों होता है और कैसे होता है, उसी के लिए आपका प्रोडक्ट क्राइटेरिया ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपको देखना है। टू सी क्राइटेरिया ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन कि क्यों आपका हाइड्रोजन बनती है, क्यों क्लोरीन बनता है, एंड व्हाई नॉट अदर केमिकल्स। Now if we say कि Na positive and H positive can go here, Cl negative and H negative, OH negative then that can go here। अब इसमें से कौन से वाला ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, तो हम इसमें देखें कि सपोज Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स Na, और H पॉजिटिव एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स H। सो यू कैन से H एटम की बात करें तो H डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम, एटम की फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा ही कंबाइन करके बनाएगा H2। तो इफ यू आर राइटिंग 1 तो यू कैन से हाफ H2, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, दिस वे यू कैन राइट कि H पॉजिटिव इज हाफ H2 मीन्स H। नाउ दिस H पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव विल गो टू कैथोड, H पॉजिटिव कैन बी रिड्यूस्ड, Na पॉजिटिव कैन बी रिड्यूस्ड, बोथ ऑफ देम कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और दोनों ही रिड्यूस हो सकते हैं। अब रिड्यूस होने में इसके केस में जो E0 है रिडक्शन पोटेंशियल, इट इज़ -2.71 एंड हाइड्रोजन के केस में यू रिमेंबर एंड यू मस्ट रिमेंबर इट इज़ 0। नाउ एट कैथोड H positive can be reduced and Na positive can be reduced. Both of them can be reduced, but which one will be reduced? When there are two competing reactions, when there are two competing reactions means एक ही इलेक्ट्रोड पर दो रिएक्शंस हो जाएं जो आपस में compete करें, both are reduction reactions. In that case, the reaction with greater value of reduction potential will be reduced. जिसका reduction potential ज़्यादा होगा वो reduce होगा, जिसका ऑक्सीडेंट पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। The substance which has greater reduction potential is always reduced. This thing we have seen in electrochemical series. Electrochemical series का आपको complete एक बार revise करना चाहिए. You must revise the video of electrochemical series. Now out of these two, Na positive can be reduced, H positive can be reduced, but out of them only one can be reduced. और रिड्यूस कौन सा होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखिए नेगेटिव है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। इट मीन्स ज़्यादा किसका है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हैज़ हायर रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज हायर, सो हाइड्रोजन विल बी रिड्यूस्ड, Na पॉजिटिव कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, मीन्स H पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव बोथ विल गो हियर, दोनों जाएंगे, बोथ ऑफ देम विल गो, बट हु विल विन द रेस? विच हैज़ हायर रिडक्शन पोटेंशियल। रिड्यूस कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। So remember one thing, if you had two competing reactions at one electrode, किसी भी इलेक्ट्रोड पर अगर आपका दो रिएक्शंस हो रही हैं और मोर देन 2 रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस, देन रिमेंबर कि एट कैथोड पर रिडक्शन होता है, कैथोड पर इट इज़ ऑलवेज रिडक्शन, द सब्सटेंस विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल विल बी रिड्यूस्ड। यानी कैथोड पर रिएक्शन कौन करेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब जैसे यहाँ पर इधर जाएँ हम अपोजिट कि OH negative is going here and Cl negative is going here. So here OH negative can be oxidized, Cl negative can be oxidized. Both of them can be oxidized. दोनों ही ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। अब दोनों में से ऑक्सीडाइज कौन होगा? दोनों से ऑक्सीडाइज कौन होगा? That will depend on the oxidation potential. क्योंकि यहाँ रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, the substance which has higher oxidation potential will be oxidized, and higher oxidation potential means lesser reduction potential, means यहाँ पर रिएक्शन कौन करेगा? which has lesser reduction potential, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वही रिएक्शन करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल आपका कम होगा मीन्स ऑक्सीजन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो करेगा। अब इसमें देयर आर 2 थिंग्स, वन इज़ देयर मे बी 2 रिएक्शंस, बेसिकली इसमें आपकी 2 रिएक्शंस हो सकती हैं कि इट Cl नेगेटिव कैन गो and Cl negative can donate 1 electron becomes Cl. Same way, because chlorine is always Cl2, so if you write Cl2 you can write it half Cl2 to donate 1 electron. In this case E0 reduction potential is 1.36. Another possibility has been
कि एक्चुअली ये OH नेगेटिव भी कहाँ से आता है, OH नेगेटिव कम्स फ्रॉम वाटर, आयनेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आपका वाटर आयनाइज होता है कि 2H2O, अब H2O क्या देगा, इट विल गिव O2, it can give O2, it gives 4H positive and plus 4 electrons, and here E naught is 1.23। तो इसमें एक्चुअली होना ये चाहिए कि 1.23 वाला इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मीन्स ऑक्सीजन पोटेंशियल ज़्यादा है, इट मीन्स रिएक्शन तो ये होना चाहिए, ऑक्सीजन बनना चाहिए। बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, एक स्पेसिफिक केस है, एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस में ऑक्सीजन का यहाँ पर ओवर पोटेंशियल ज़्यादा होने से रिएक्शन ये वाली नहीं होती है, Cl नेगेटिव वाली होती है। दिस रिएक्शन इज़ नॉट प्रेफर्ड। एक्चुअली जो हम पढ़ा रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग तो ये वाला रिएक्शन प्रेफरेबल है, बट ऑक्सीजन का ओवर पोटेंशियल ज़्यादा है, इसकी पोटेंशियल ज़्यादा होने से रिएक्शन नहीं कर पाता है, ये रिवर्स हो जाती है, एंड दिस क्लोरीन रिएक्ट्स, Cl नेगेटिव बिकम्स Cl2। तो यानी कि यहाँ पर आपका Cl नेगेटिव से Cl2 बनेगा और यहाँ पर आपका H पॉजिटिव से H2 बनेगा। सो NaCl प्लस H2 में H से बनेगा H2, Cl नेगेटिव से Cl2, एंड Na एंड OH विल रिएक्ट टू फॉर्म NaOH। तो दैट इज़ बेसिकली क्राइटेरिया ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। प्रोडक्ट कैसे बनता है उसके लिए आपको ध्यान ये रखना है, दिस इज ए स्पेशल केस, दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड। अदरवाइज यू रिमेंबर कि अगर कहीं पर भी इफ़ देर आर टू कंपीटिंग रिएक्शंस ऑन एन इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पर दो एक जैसी रिएक्शन है, टू सब्सटेंसेज दे आर देयर फॉर रिडक्शन, तो द सब्सटेंस विच हायर रिडक्शन पोटेंशियल विल बी रिड्यूस्ड। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो रिड्यूस होगा कैथोड पर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है मीन्स ऑक्सीजन पोटेंशियल ज़्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल कम होने का मतलब ऑक्सीजन पोटेंशियल ज़्यादा होना, तो द सब्सटेंस विद लेसर रिडक्शन पोटेंशियल विल बी ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन है। कैथोड पर रिडक्शन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। एनोड पर ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, इट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। द सब्सटेंस with lesser reduction potential or higher oxidation potential will be oxidized, and here the substance with greater reduction potential will be reduced. So that is the main thing which you have to remember. If there are two competing reactions on an electrode, एक ही इलेक्ट्रोड पर दो रिएक्शन है, तो substance with greater reduction potential will be reduced, and here the substance with lesser reduction potential will be oxidized. That you have to remember. That is the criteria of product formation. On the basis of this, you can see how the products are formed. Now, on the basis of these electrolysis, certain laws were given by Faraday. Faraday ने इसी को study करने के बाद अपने laws दिए हैं, and on the basis of these Faraday's laws, you have certain numericals. आपको कुछ numericals करने होते हैं, and those numericals you can solve easily theoretically without using formula also. आप लोग formula use करके करते हैं numerical. I will tell you the theoretical way कि कैसे आप थ्योरेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकली भी आपको बता देते हैं। आई विल टेल यू बोथ वेज, बट यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली बाय यूजिंग थ्योरी। तो पहले आप थ्योरी समझें कि सपोज ये NaCl है, NaCl में आप सिंपल इसमें NaCl ले रहे हैं। नाउ वी आर नॉट टेकिंग बोथ ऑफ देम, इफ यू हैव ओनली NaCl, तो इट विल बी आयनाइज्ड टू Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब फेराडे ने जो लॉ दिए हैं वो ये देता है कि आपका कि Na पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव प्लेट पर, Cl नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव प्लेट पर, देन हाउ मच Na पॉजिटिव विल बी फॉर्म्ड, हाउ मच सोडियम विल बी फॉर्म्ड, एंड हाउ मच क्लोरीन विल बी फॉर्म्ड। यहाँ पर हम कहते हैं कि जब ये आपका NaCl गिव्स Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, Cl negative donates 1 electron becomes Cl, or you can say 2 Cl negative will become Cl2 plus 2 electron. नेगेटिव है कहाँ पर होगा, एनोड पर, एंड दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन। एंड कैथोड पर क्या होता है, Na पॉजिटिव accepts electron becomes Na. That happens at cathode, and this is reduction. तो Cl negative will give Cl2, and here you will have Na positive. Sodium will be deposited. Sodium metal बनेगा आपका। अब how much sodium is formed, कितना सोडियम बनेगा, ये आपका फेराडेज का फर्स्ट लॉ कहता है। फर्स्ट लॉ सेज
कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? चार्ज के। जितना ज़्यादा चार्ज आप देंगे, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देंगे, उतना ही अमाउंट आपका डिसॉल्व होगा। और यू कैन से W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT, बिकॉज इन फिजिक्स यू से Q इज इक्वल टू IT। I इज करंट इन एम्पियर, T इज टाइम, कितने टाइम के लिए आपने करंट पास किया। एंड इफ यू मेक इट इक्वल देन यू से Z IT। Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। Z निकालने का तरीका सीधा सीधा है कि यू हैव एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट एंड डिवाइड बाई NF। N is number of electron donated and accepted and F is Faraday's constant. N is number of electrons donated or accepted and F is Faraday's constant. It is 96500 कूलम्स। आप इसको रख के न्यूमेरिकल आपका डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, बट एक्चुअली आता कहाँ से? वो थ्योरेटिकल बेस है। फेराडे ने मैथमेटिकल फॉर्म में कभी सॉल्व नहीं किया, फेराडे ने कभी मैथमेटिकल फॉर्मूले नहीं दिए, ही डिड इट ओनली ऑन थ्योरेटिकल बेस। कंप्लीट थ्योरेटिकल बेस है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ओके, दिस इज द बेसिकली लॉ कि अमाउंट डिपॉजिटेड इलेक्ट्रोड, यहाँ कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा सोडियम का, वो डिपेंड करेगा ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी पास। Q इज इक्वल टू IT आपने रखा, देन इक्वल करने के Z आपने यूज़ किया। Z की वैल्यू निकालना चाहें तो Z विल बी W अपॉन IT दिस वे, और यू कैन से W अपॉन Q। और एक फॉर्मूला और आपका आता है Q इज इक्वल टू NF। उसी से आपने इसको लिया है कि W अपॉन NF मीन्स आप एटॉमिक वेट को डिवाइड कर दें, इससे भी आपका आ जाता है सेम। तो Z क्या है आपका? Z इज इक्वल टू अमाउंट व्हेन I एंड T विल बी 1। अगर 1 एम्पियर लेंगे आप करंट, टाइम लेंगे 1 सेकेंड, 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए आप पास करें तो W विल बी इक्वल टू Z। Z की वैल्यू आप इस वेट से भी निकाल सकते हैं। मीन्स आप इसके अंदर 1 एम्पियर का करंट पास करें, 1 सेकेंड के लिए पास करें, कितना सोडियम डिपॉजिट होगा उस वेट को देख लें, दैट वेट विल इक्वल टू Z। इससे भी आपका निकल के आता है। अब थ्योरेटिकल बेस पे आप इसको कैसे करते हैं? थ्योरेटिकली आप देखें कि व्हेन Na पॉजिटिव accepts 1 electron, it becomes Na, and charge on 1 electron is 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. This charge you have seen. तो आप ये समझें कि when Na positive goes here, it accepts 1 electron and then it is converted to sodium. Na positive takes 1 electron, then it becomes Na. 1 electron का चार्ज लिया मीन्स कितना चार्ज लिया? इतना लिया है। इट मीन्स यू कैन से कि द चार्ज required for the deposition of 1 atom of sodium is 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. अब 1 एटम अगर आपने डिपॉजिट करना है इतना चार्ज है, एंड इफ यू से कि चार्ज रिक्वायर्ड to deposit 1 mole of sodium. सोडियम का 1 मोल करें। अब सोडियम के लिए 1 मोल कितने का होगा? सोडियम, या आप सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं या सीन इन सॉल्यूशन कि वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट इज मोल। सोडियम का एटॉमिक वेट इज 23, तो 23 ग्राम विल बी 1 मोल। तो अगर आप 23 ग्राम बनाना चाहें तो इट्स 1 मोल। 1 मोल के अंदर एटम्स कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 पावर 23। इतने एटम्स होते हैं 1 मोल में।
इट मीन सोडियम में 23 ग्राम में इतने एटम होंगे। 1 एटम के लिए चार्ज इतना है, 1 एटम के लिए चार्ज इतना है, तो इतने एटम्स के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, विल बी 1.6 10⁻19 इंटू दिस नंबर, मीन्स चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू दिस नंबर। 1 एटम के लिए चार्ज इतना चाहिए, तो इतने एटम्स के लिए कितना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया। एंड दिस इज 96494, इसी को अप्रॉक्सीमेटली 96500 हम कह देते हैं कूलम्स। दिस इज बेसिकली फैराडेज लॉ, यहीं से आता है। अब इसको थ्योरेटिकल सॉल्व करने के लिए आप ऐसे समझें कि 23 अगर सोडियम आपको दिया गया है, इट टेक्स 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम टेक्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम के 1 मोल के लिए यू विल नीड 1 फैराडे, 96,500 कूलम्स। अब आप बात करें कि सपोज मैग्नीशियम एटॉमिक वेट इज 24, तो 24 ग्राम विल बी 1 मोल। अब मैग्नीशियम एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम इज ऑलवेज 2 पॉजिटिव, इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, देन इट विल बिकम Mg। तो मैग्नीशियम का 1 एटम अगर आप डिपॉजिट करना चाहें तो चार्ज इक्वल विल बी इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज इक्वल भी 2 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, 1.6 10⁻10, 2 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का डबल हो जाएगा, और 1 मोल में आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो इट विल बी 2 इंटू 96,500, यानी मैग्नीशियम के 24 ग्राम के लिए आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा। अब मैग्नीशियम की जगह सपोज कैल्शियम है, कैल्शियम एटॉमिक वेट इज 40, तो इसके 40 ग्राम के लिए आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा ना। सपोज से एल्यूमिनियम एटॉमिक वेट इज 27 ग्राम एंड एल्यूमिनियम इज Al3 पॉजिटिव, सो एल्यूमिनियम एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन, देन इट विल बिकम Al। इट मीन्स एल्यूमिनियम का 1 एटम डिपॉजिट करना चाहें आप, इफ़ यू वांट टू डिपॉजिट 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम, यू हैव टू सप्लाई हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 3, मीन्स इसका ट्रिपल चार्ज आपका चाहिएगा। और अगर आप 1 मोल करेंगे तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ एवोगैड्रोस नंबर, इट मीन्स इट विल बी 3 इंटू 96,500 कूलम। मीन्स सिंपल आपको ये देखना है, किसी भी सब्सटेंस के लिए, फॉर एनी सब्सटेंस द चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल मीन्स वेट इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट, जितना भी उसका एटॉमिक वेट है। जैसे सपोज कॉपर होता तो 63 है, कॉपर के केस में 63 एटॉमिक वेट है, कॉपर इज C2 पॉजिटिव, तो कॉपर के 63 ग्राम के लिए 2 पॉजिटिव मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो इट विल नीड 2 फैराडे। आयरन 56, आयरन के केस में एटॉमिक वेट इज 56 एंड Fe2 पॉजिटिव होगा तो 56 ग्राम के लिए 2 फैराडे, और Fe3 पॉजिटिव होगा तो 56 ग्राम के लिए 3 फैराडे। जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतने ही फैराडे आपके लगेंगे 1 मोल के लिए। अब आप 1 मोल के लिए मीन्स इतने ग्राम के लिए इतने फैराडे, 27 ग्राम के लिए इतने फैराडे, तो आपसे जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी पूछी गई है कि 5 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज लगेगा, आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व करिए। सपोज आपसे कह दें कि सोडियम है एंड यू वांट टू डिपॉजिट 20 ग्राम, हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड, और इसे सपोज 10 ग्राम, तो 10 ग्राम के लिए कितना चार्ज चाहिए आपको। आप कहेंगे सोडियम का एटॉमिक वेट 23 ग्राम, 23 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए चार्जेस 96,500, फॉर 23 ग्राम charge required is 96,500, for 1 gram charge will be 96500 divided by 23, और सपोज आप कहेंगे 10 ग्राम डिपॉजिट करना है तो इंटू 10, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता है। अब ये आपका चार्ज आ गया Q एंड Q इज इक्वल टू IT, तो Q से आप I और T निकाल सकते हैं। नॉर्मली इसमें I दिया है तो देन T निकलवाते हैं, T कैल दिया है तो I निकलवाते हैं। तो दिस मेथड इफ यू यूज डायरेक्टली यूनिटरी मेथड, यू कैन सॉल्व ऑल न्यूमेरिकल्स। इसी मेथड को यूज़ करके आप टोटल न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, एंड वी विल टेक 1 सेशन फॉर दीज न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। अब एक लॉ और इसमें फैराडे का है, फैराडे का एक और लॉ है आपका सेकेंड लॉ, एंड ही सेज कि इफ़ 2 or more than 2 इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, अगर आपने सीरीज़ में अटैच कर दिए हैं, सपोज देयर इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हियर, it is connected with second electrochemical cell, it is connected with third electrochemical cell, and you pass electricity and they are connected in series.
सीरीज मीन्स ऐसे आप इनको आपस में सीरियलाइज वे में अटैच करते चले जाएं। This way, and this one you can connect it with battery this way. So then on passing electricity, suppose आपने यहाँ लिया AgNO3, यहाँ सपोज लिया आपने CuSO4, यहाँ आपने लिया सपोज AlCl3, this way. Then it says कि यहाँ पर आपका मेटल क्या है, सिल्वर, मेटल इज कॉपर, मेटल इज एल्यूमिनियम. सिल्वर इज Ag positive, copper is Cu2 positive, Al is Al3 positive. So all these positive will go to negative plate. So this is positive plate, it will go to negative plate. Ag positive will go here, Cu2 positive will go here, Al3 positive will go here. तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एल्यूमिनियम, here you will get copper, here you will get silver. कितना सिल्वर मिलेगा, कितना कॉपर मिलेगा, इनकी रेशो जो कहता है कि W1 अपॉन W2, इसका वेट और उसका वेट, दैट विल बी इक्वल टू E1 अपॉन E2 इक्विवेलेंट वेट और Z1 अपॉन Z2. अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट निकाला था. अभी आपका Z कैसे निकाला था हमने, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फैराडेज कांस्टेंट, इससे निकाल दें. तो इन्हीं की रेशो में आपका वेट आएगा. यहाँ जो डिपॉजिट होगा सिल्वर, कॉपर या एल्यूमिनियम, दैट विल बी इन द रेशो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट और इन द रेशो ऑफ देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. इससे आपका डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं. ऑल्दो यू डोंट हैव न्यूमेरिकल्स ऑन दिस लॉ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपके यहाँ CBSE में नहीं मिलता है, बट यू मस्ट नो, सॉल्व आप कर सकते हैं. नाउ दिस ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिसिस एंड क्राइटेरिया ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. स्टिल इफ़ यू हैव प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी एंड आई कैन डिस्कस इन फर्दर वीडियोज़. अगर आपको समझ में आ गया हो देन लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.